بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے مسائل پوری طریقے سے ختم ہو چکے ہیں، اب ہم فقہیات اور فتاوی کے باب میں آئے ہیں اور ہمارے سامنے ڈاکٹر فضل الرحمن دین محمد المدنی حفظہ اللہ کی کتاب ہے نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن۔ انہی کے فتووں کے منتخبات کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیا استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لیے کتاب و سنت میں وعیدیں وارد ہوئی ہیں؟ برائے مہربانی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ ہے سوال۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے جو ہر اس باعقل بالغ اور آزاد مسلمان پر جو اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے ساتھ بیت اللہ تک آنے جانے اور زاد و راحلہ کی استطاعت رکھتا ہو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے حج فرض ہو جانے کے بعد اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ فإن احدکم لا یدری ما یعرض له رواہ احمد۔ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو کیونکہ تم میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسے کیا پیش آ سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد یمرض المریض وتدل الدالہ وتعرض الحاجہ۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214۔ جو حج کرنا چاہتا ہے وہ جلدی کرے کیونکہ اسے مرض لاحق ہو سکتا ہے، سواری غائب ہو سکتی ہے اور کوئی حاجت پیش آ سکتی ہے۔ مکلف اور مستطیع ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا اور اس کا انکار کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے سخت قسم کی وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے بیت اللہ کا حج ان لوگوں پر واجب ہے جو اس کی راہ پاتے ہیں، اور جو انکار کرے تو اللہ رب العالمین اس سے اور تمام دنیا والوں سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں حج کا انکار کرنے والے کے لیے سخت قسم کی وعید ہے، اور اللہ رب العالمین استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے سے گویا اظہار براءت کر رہا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی تو وہ یہود و نصارہ کی موت مرا۔ من لم يحبس مرض او حاجت ظاہرہ او سلطان جائر ولم يحج فلم يمت ان شاء یہودیا فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا۔ اخرجہ البیہقی السنن الکبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 334۔ جس نے کسی مرض، ظاہری ضرورت یا ظالم بادشاہ کے بغیر حج نہ کیا تو اس کے لیے برابر ہے خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی عیسائی ہو کر کے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حج کے تارک کے لیے سخت وعیدیں ہیں، اور اگر کوئی حج کے ترک کو حلال اور جائز سمجھتے ہوئے حج نہیں کرتا ہے تو اس کا حکم یہود و نصارہ کا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس بات کو حلال نہیں سمجھتا ہے بلکہ محض سستی، کاہلی اور بخیلی کی وجہ سے حج نہیں کرتا ہے تو اس کا حکم گرچہ یہود و نصارہ کا نہیں ہوگا پھر بھی ایک عظیم گناہ کا مرتکب ضرور ہوگا، اور بلا وجہ تاخیر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ قرض لے کر حج کرنے کا حکم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کافی لمبا سوال ہے، کہ میں اس سال کے اوائل میں ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا ہوں۔ ریٹائرڈ ہونے پر ایک ملازم کو جو رقم اپنے دفتر سے ملتی ہے اس میں سے تقریباً نصف ملنا ابھی باقی ہے۔
जो रकम उस वक्त मेरे पास इस वक्त मेरे पास मौजूद है वो मसारिफ हज के लिए बहुत नाकाफी है। अलबत्ता जो रकम मिलने वाली है वो काफ़ी से ज़्यादा है, मगर ये रकम मेरे कब्ज़ा में कब आएगी इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। मामला सिर्फ मेरी ज़ात का ही नहीं कि मिन्नत समाजत करके रकम को वागुजार कराया जाता, बल्कि पूरे महकमे, यहाँ दिया है कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, पूरा लंबा सवाल है, तो उसके बारे में जो मुख्तसर जवाब है वो ये कि जब तक आपके हाथ में इतनी रकम नहीं आ जाती जो हज के इखराजात के लिए काफ़ी हो, उस वक्त तक आप पर हज वाजिब नहीं है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो बैतुल्लाह तक पहुंचने की इस्तिताअत रखते हो उसका हज फर्ज कर दिया है। अलबत्ता जब आपके पास इतने वसाइल मौजूद हैं जिनके जरिया आप कर्ज हासिल कर सकते हैं और चंद माह में कर्ज की अदायगी भी कर सकते हैं और आपको इसकी पूरी उम्मीद है, तो कर्ज लेकर हज कर सकते हैं। लेकिन इस बात का लिहाज रहे कि जो कर्ज आप लें वो कर्ज हसन हो, यानी बिला सूदी हो, और उसकी अदायगी की सच्ची और पुख्ता नीयत हो, बल्कि पूरी कोशिश हो कि सफ़र हज से कबल ही अदा कर दें, और अगर अल्लाह न करे अदा न कर सकें तो कर्ज देने वाले से इजाज़त लेकर सफ़र करें और अपने वरसा को कर्ज की अदायगी की वसीयत करके जाएं। हराम माल से हज मकबूल नहीं। एक शख्स ताजिर है, हलाल व हराम की तमीज़ नहीं करता, उसने पहले अपनी हराम कमाई से हज किया और अब उसने हराम कमाई से तौबा कर लिया है, तो क्या साबिका हज उसके लिए काफ़ी होगा या उसे फिर से हज करना पड़ेगा? कहते हैं हराम माल से किया हुआ हज अल्लाह के नज़दीक मकबूल नहीं। इस वास्ते तौबा के बाद अगर उसके पास हलाल कमाई से हज करने की इस्तिताअत है तो उसे फिर से हज कर लेना चाहिए। फर्ज हज के लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी नहीं। औरत पर हज फर्ज हो जाने की सूरत में क्या हज के सफ़र के लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी है या उसकी इजाज़त के बगैर भी वो हज के लिए जा सकती है? तो कहते हैं मालो दौलत और महरम पा जाने की बिना पर औरत पर हज फर्ज हो चुका है, तो अपने शौहर को इजाज़त देने के लिए वो राज़ी करने की कोशिश करे। इसके बावजूद भी अगर वो हज के लिए जाने की इजाज़त नहीं देता है तो फिर उसकी इजाज़त के बगैर वो जा सकती है। जैसे शौहर की इजाज़त के बगैर वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेगी, उसी तरह हज भी करेगी। इरशाद नबवी है ला ताअत लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 66। वक़ाल अल-अलबानी सहीहुन सिलसिले अहादीस सहीहा जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 297। खालिक की मासियत में किसी मखलूक की इताअत नहीं है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि औरत को बहुत अच्छे से अपने शौहर को मनाना चाहिए और उसे खुश करके और उसके बाद में हज पर जाना चाहिए, ताकि उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कहीं खटास और कड़वाहट ना आए। जब औरत को महरम मिले लेकिन वो उसके साथ हज करना पसंद ना करती हो, तो क्या इस औरत से हज साकित हो जाएगा? यानी औरत है, इसका महरम मिल रहा है पर ये उनके साथ जाना नहीं चाहती है। कहते हैं औरत का उसके महरम के साथ कोई झगड़ा और इख्तिलाफ है तो किताब व सुन्नत की रोशनी में उस इख्तिलाफ को ख़त्म करके सुलह सफाई करना चाहिए और उसके साथ हज पर जाएं। अगर इस सिर्फ अपनी जिद और हठ धर्मी की बिना पर वो उसके साथ हज करने नहीं जाती है तो इससे हज साकित नहीं होगा।
पहले हज की अदायगी का हकदार कौन? यहाँ ये सवाल आया है कि एक आदमी है जिसके ऊपर हज फर्ज हो चुका है, मगर उसके वालिदैन भी अभी हज नहीं कर सके हैं, तो ऐसी सूरत में पहले हज कौन करेगा, बाप या बेटा? मालूम रहे कि पैसे सिर्फ एक आदमी के हज के लिए काफी हैं। अगर बाप और बेटे दोनों साथ साथ रह रहे हैं, बंटवारा नहीं हुआ है, तो पहले बाप को हज करना चाहिए, और अगर दोनों बंटवारा करके अलग अलग रहते हैं तो जिसके पास हज के लिए पैसे हैं उस पर हज फर्ज होगा, दूसरे पर नहीं होगा। इसी तरह का एक सवाल और है, बेटा अगर साहिबे माल हो और उसकी इतनी इस्तिताअत हो कि वो हज बैतुल्लाह कर सकता हो, लेकिन उसके वालिदैन ने अब तक हज नहीं किया है, तो क्या पहले वो हज कर सकता है या पहले अपने वालिदैन को हज करवाए, इसके बाद खुद हज करने के लिए जाए? कहते हैं बेटा अगर साहिबे माल और मुस्तती है तो उसके ऊपर आयते करीमा वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला की बिना पर हज फर्ज है, और वालिद पर साहिबे माल और इस्तिताअत न होने की बिना पर हज फर्ज नहीं है, और न बेटे पर बाप को हज कराना फर्ज है। इस वास्ते बेटे को पहले खुद अपना हज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो हज की इस्तिताअत रखते हुए ताखीर करता है और उसकी अदायगी से पहले मर जाता है तो वो गुनहगार और इंदल्लाह मसऊल होगा, जिम्मेदार होगा। इसके बाद अगर वो बाप को भी हज करा सकता है तो उसको भी करा दे, ये बेहतर होगा। हज से गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या हदीस व अन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्लहु सही है, और इससे सगाइर व कबाइर दोनों किस्म के गुनाह माफ हो जाते हैं? तो कहते हैं यह हदीस सही है। इसकी तखरीज इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान में की है, और इस माना की एक और हदीस है, मन हज्जा लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमी वलदतहु उम्मुहु मुत्तफकुन अलैह। जिसने हज किया और उसमें फिस्को फुजूर और शहवत वाली बातों से परहेज किया तो वो गुनाहों से इस तरह पाक व साफ होकर लौटेगा जैसे उस दिन पाक व साफ था जब उसकी विलादत हुई थी। इसी तरह रसूल अकरम ने फरमाया है, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह मुत्तफकुन अलैह। हज मबरूर का बदला जन्नत ही है। इन सब रिवायतों से मालूम होता है कि हज मबरूर से गुनाहों की माफी होती है, मगर बज़ाहिर इससे सगीरा गुनाह मुराद हैं। कबीरा गुनाहों की माफी के लिए तौबा उसकी शुरूत के साथ जरूरी है, सिर्फ हज से वो माफ नहीं होंगे। एक खातून के साथ उसका 5 साल का बच्चा है, तो क्या इसका भी हज होगा? और होगा तो उसका तरीका क्या होगा? कहते हैं इस नाबालिग बच्चे पर हज फर्ज नहीं है, लेकिन अगर ये खातून बच्चे को हज कराए तो उसका सवाब उसे मिलेगा। एक खातून ने अपने बच्चा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठाकर पूछा, अली हादा हज्जुन, ऐसे उठा के पूछा, अली हादा हज्जुन, क्या इसका भी हज है? आपने कहा नअम वाला के अजरुन, हाँ, और तुझे इसका सवाब भी मिलेगा। मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसई। बच्चों के हज का तरीका भी वही है जो बड़ों के हज का तरीका है। चुनांचे मीकात पर या उससे पहले जैसे खुद नहा धोकर एहराम पहने, इसे भी नहलाकर एहराम पहना दें। लड़का है तो मर्दों का एहराम और लड़की है तो औरतों का एहराम। बच्चों से तलबिया पुकारने के लिए कहें, और जैसे खुद ममनुआते एहराम से बचें, इन्हें भी बचाएं।
اور اعمال حج میں جو وہ خود کر سکتے ہیں ان سے کرائیں، اور جو کام وہ نہیں کر سکتے ہیں ان کی طرف سے ان کا سرپرست کرے گا، وہ بھی جو اس بچے کو لیے ہے وہ کرے گا، اور بچے کا حج صحیح ہوگا، اور اس کی ماں یا جو سرپرست بھی اسے حج کرائے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ مگر حجۃ الاسلام کے بدلے یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ بچے کو بالغ ہونے کے بعد اگر مستطیع ہوا تو پھر حج کرنا پڑے گا۔ حج سے پہلے اولاد کی شادی کرنی ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا ہے، تو حج کرنے کے لیے اس سے پہلے اولاد کی شادی کرنا شرط اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی فرضیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے زاد و راحلہ کی استطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آل عمران آیت نمبر 97۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر کلثوم کو یہ خوف نہیں ہے، یہاں پر سوال میں یہاں کلثوم کا ذکر آیا ہے، اگر کلثوم کو یہ خوف نہیں ہے کہ وہ اگر ابھی اولاد کی شادی نہ کرے اور انہیں چھوڑ کر حج کرنے چلی جائے تو وہ فتنہ اور حرام کام میں واقع ہو جائیں گے، تو وہ حج کے لیے جا سکتی ہے۔ اور اگر اس سے یہ اندیشہ ہے کہ وہ حج کرنے چلی جائے گی تو گھر پر بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اور وہ گناہ میں پڑ جائیں گے، یا حج کے اخراجات کے بعد بچوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں رہیں گے یا نہیں بچیں گے جبکہ ان کی شادی بہت ضروری ہے، تو ایسی صورت میں پہلے بچوں کی شادی کرے پھر حج کرنے کے لیے جائے۔ لیکن یہاں وہ اپنی والدہ کے خرچ پر جا رہی ہے، اس لیے بظاہر آخری صورت نہیں ہے۔ نیز بچوں کی شادی وغیرہ کے اخراجات بچوں کے والد پر ہے، نہ کہ والدہ پر۔ اس واسطے اگر دوسرے لوگ ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے ہوں اور ان کے ضائع و برباد ہونے اور گناہ میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو تو کلثوم کے حج کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ جب تک بچوں کی شادی سے فارغ نہ ہو جائیں حج کے لیے نہیں جا سکتے، بالکل غلط ہے۔ استطاعت ہو جانے کے بعد حج فرض ہے، البتہ اگر کوئی شرعی معنی ہو تو مؤخر کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ حج سے روانگی سے پہلے الوداعی پروگرام منعقد کرنا۔ حج کے لیے روانگی سے قبل الوداعی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جس میں دوست و احباب، اعزا و اقارب وغیرہ کو دعوت دی جاتی ہے، ان کے کھانے و ضیافت کا انتظام کیا جاتا ہے، علماء کرام خطاب کرتے ہیں، شعراء اشعار سناتے اور قوالیاں سناتے ہیں۔ کیا حج کے لیے روانگی سے قبل اس طرح کے پروگرام مسنون ہیں؟ کہتے ہیں اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس طرح کے پروگراموں کو بعض علماء نے بدعت قرار دیا ہے۔ اس واسطے اس سے احتراز کرنا اور شرعی طریقے پر حجاج کو رخصت کرنا چاہیے۔ حاجی کو رخصت کرتے وقت پھولوں کا ہار پہنانا تو اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس واسطے اس سے بچیں، اس سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی شخص اسے ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدعت کا کام ہے۔ ایئرپورٹ پر احرام باندھنے کا حکم۔ حجاج اور معتمرین کے لیے ایئرپورٹ پر احرام باندھنا کیسا ہے؟ کیا میقات پر احرام باندھنا لازم ہے؟ کہتے ہیں حجاج کرام اور معتمرین جو بیت الحجاج یا ایئرپورٹ پر احرام باندھتے ہیں وہ حقیقت میں احرام کی تیاری ہوتی ہے، کیونکہ احرام اصل میں حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت کرنا اور پھر تلبیہ پکارنا ہے۔ اور حجاج کرام اور معتمرین جو کام ایئرپورٹ یا بیت الحجاج میں کرتے ہیں
वो है नहा धोकर एहराम के कपड़े पहनना और एहराम की हालत में जो सिले हुए कपड़े पहनना ममनू है उनका निकालना। एयरपोर्ट या बैतुल हुज्जाज से उमूमन वो हज या उम्रा की नियत नहीं करते और तलबिया नहीं पुकारते। ये काम वो मीकात के पास पहुंच कर करते हैं जब जहाज में ये ऐलान होता है कि अब मीकात आने वाला है। हज और उम्रा करने वाले हजरात एहराम बांध ले। और चूंकि हवाई जहाज में नहाना धोना और एहराम के कपड़े पहनना उमूमन बहुत मुश्किल बल्कि सबके लिए नामुमकिन होता है, इस वास्ते सहूलत के लिए यानी हुज्जाज एयरपोर्ट या बैतुल हुज्जाज में ही सारे काम करके एहराम के कपड़े पहन लेते हैं ताकि मीकात आने पर उन्हें सिर्फ नियत करना और तलबिया पुकारना रहे। और इस मसलहत की बिना पर शरअन इसकी गुंजाइश है, इसमें कोई हरज नहीं है। बल्कि अगर किसी ज़रूरत की बिना पर मीकात से पहले ही नियत कर लें तो इसकी भी गुंजाइश है। इमाम इब्ने मुंजिर फरमाते हैं, यहाँ उनकी लंबी रिवायत है, उसका मफहूम यह है अहले इल्म का इजमा है कि जिसने मीकात से कब्ल एहराम बांध लिया वो मुहरिम है, उसका हज सही है। और क्या ऐसा करना मकरूह है? तो कहा गया है कि हाँ मकरूह है, क्योंकि सहाबे किराम का ये कहना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना के लिए जुल्हुलैफा को मीकात करार दिया, इसका तकाजा है कि इसमें कमो बेशी न की जाए, इसमें न कमी की जाए और न ज्यादती। इस वास्ते अगर ज्यादती हराम ना होगी तो कम अज कम उसका तर्क करना अफजल होगा। इस वास्ते जरूरत की बिना पर एयरपोर्ट या बैतुल हुज्जाज में नहाकर एहराम के कपड़े पहन लेने में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता कोशिश होनी चाहिए कि हज या उम्रा दोनों की नियत मीकात के करीब आने पर करें और उसी वक्त से तलबिया पुकारना शुरू करें, क्योंकि हवाई जहाज मीकात पर रुकते नहीं। इस वास्ते अहवत ये है यानी ज्यादा एहतियात ये है कि ऐलान होने के बाद ही नियत करके तलबिया पुकारना शुरू कर दें। इज्तिमाई तलबिया पुकारना बिदअत। हज में या उम्रे में चीज अक्सर देखी जाती है कि लोग इज्तिमाई तौर पर तलबिया पुकारते हैं। तो कहते हैं इज्तिमाई तौर से इस तरह तलबिया पुकारना कि पहले एक शख्स बुलंद आवाज से तलबिया के कलिमात कहे, फिर उसके पीछे लोग इज्तिमाई तौर से तलबिया कहें, ये बिदअत है, क्योंकि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम से साबित नहीं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम लोग हज्जतुल वदा में नबी अकरम के साथ थे तो कोई तलबिया पुकारता, कोई अल्लाह अकबर कहता और कोई जिक्र अस्कार में पड़ा रहता था और दुआएं पढ़ता था। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 9 और हदीस नंबर 30। खाने काबा पर नजर पड़े तो क्या दुआ पढ़ेंगे? क्या कोई ऐसी हदीस है कि खाने काबा पर नजर पड़ते वक्त जो दुआ की जाए वो कबूल होती है? कहते हैं मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस सही सनद से साबित नहीं है जिसमें इस बात की सराहत हो कि खाना काबा पर पहली नजर पड़ते वक्त की गई दुआ जरूर कबूल होती है। ऐसी कोई भी बात साबित नहीं है। लोगों में चीज बहुत मशहूर है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मीज़ाब रहमत से तलबिया पुकारना साबित नहीं। यहाँ उन लोगों के लिए बात कही गई है कि जो योम तरविया को एहराम के कपड़े पहनने के बाद हरम में जाकर मीज़ाब रहमत के पास से तलबिया पुकारेंगे और उनके लिए तलबिया पुकारना मसनून होगा। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी बतहा में क़याम फरमा थे और आप वहीं से एहराम बांधकर मीना चले गए। हरम में आकर मीज़ाब रहमत के पास से तलबिया नहीं पुकारा। व खैरुल हुदा
व खैरुल हुदा हुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो इसी पर अमल करना चाहिए। जहां पर आदमी मुकीम है वहीं से एहराम बांध करके चला जाए। मस्जिद आयशा से उम्रा का एहराम बांधना, उम्रा के लिए मस्जिद आयशा से एहराम बांधना कैसा है? क्या मस्जिद आयशा मीकात है? यहाँ साइल ने कहा है कि थोड़ी सी तफसील के साथ बयान फरमाएं। कहते हैं हुदूद हरम में मुकीम लोग ख्वाह मक्का के बाशिंदे हों, मक्का के रहने वाले हों या मक्का से बाहर के, वो उम्रा के लिए हुदूद हरम से बाहर जाकर जहां से चाहें एहराम बांध सकते हैं। मकामे तनईम ही इसके लिए खास और ज़रूरी नहीं है। जिधर भी उनके लिए हिल करीब पड़े उधर ही निकल जाएं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत आयशा को मकामे तनीम से एहराम बांधने का हुक्म दिया था, वो मकामे तनीम के हुदूद हरम से खारिज मकामात में से सबसे ज़्यादा करीब होने की बिना पर था। वो जगह सबसे करीब थी, इस वजह से वहां भेजा था। इस वास्ते हुदूद हरम में रहने वालों के लिए मकामे तनीम को खास मानकर सिर्फ वहीं से उम्रा के लिए एहराम बांधने को ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह हुज्जाज का मक्का में इकामत के दौरान बकसरत तनीम से एहराम बांधकर अपनी जानिब से और अपने घर वालों की जानिब से उम्रा करने का भी सबूत नहीं। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त एक उज़्र की बिना पर दी थी और वो हायसा हो गई थी। और फिर इन्होंने मुतालबा भी किया था कि सब लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं और मैं हैज़ की वजह से अपना उम्रा पूरा नहीं कर सकी थी। और किसी सहाबी से इस तरह का उम्रा करना साबित नहीं है। औरत का एहराम, कहते हैं कि बराह करम औरत के एहराम के बारे में बताएं। तो औरत सिले हुए कपड़े में एहराम बांधेगी और इसके लिए किसी मखसूस रंग की शर्त नहीं, और हालत एहराम में वो नकाब नहीं इस्तेमाल करेगी। सुनन तिरमिज़ी और जिल्द नंबर 3 हदीस बाब वो सफ़ा नंबर 194 195। इसी तरह इस हालत में वो दस्ताना भी नहीं पहनेंगी। और ये मसला हम बार बार बता चुके हैं कि जब अजनबी लोग इसके सामने आएंगे तो ये अपने चेहरे पर अपनी चादर या अपना दुपट्टा डाल लेगी। हज की नीयत का बयान, हज की नीयत जुबान से या दिल से करेंगे। इस मौका की कोई खास दुआ है जो तकरार के साथ पढ़ी जाएगी। कहते हैं हज और उम्रा की नीयत दिल और जुबान दोनों से की जाएगी। चुनांचे एहराम बांधते वक्त अगर नीयत सिर्फ उम्रा करने की है तो दिल से उम्रा की नीयत करने के साथ लब्बैका उम्रतन कहेंगे, जैसा कि हज तमत्तो या सिर्फ उम्रा करने की सूरत में होता है। और अगर सिर्फ हज करने की नीयत है जैसा कि हज इफराद में होता है तो हज की दिल से नीयत के साथ लब्बैक हज्जन कहेंगे। और अगर हज और उम्रा दोनों की नीयत है जैसा कि हज क़िरान में होता है तो दिल से नीयत के साथ लब्बैक उम्रतन व हज्जन कहेंगे। और एहराम बांधते वक्त इन अल्फाज का कह लेना काफ़ी है। हज या उम्रा करने तक बिल इस्तिमरार हालत एहराम में इनका कहना सही नहीं है। बाद में सिर्फ तलबिया पुकारते रहेंगे। यानी जब मीकात से नियत करेंगे तो दिल में नियत करेंगे, जुबान से भी कहेंगे, उसके बाद फिर कुछ नहीं कहना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, और इसके अलावा और जो दूसरी दुआएं हैं उसको पढ़ते रहेंगे। हज मकबूल के लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं। बाज लोगों से सुना गया है कि हज के लिए शादीशुदा होना जरूरी है, शादी से पहले हज करना दुरुस्त नहीं। क्या ये सही है? कहते हैं ये सही नहीं है। हज शादी से पहले भी कर सकते हैं और शादी के बाद भी, बल्कि छोटे बच्चे अपने वालिदैन वगैरह के साथ बुलूगत से पहले भी हज कर सकते हैं। अलबत्ता इनका यह हज फर्ज हज के लिए काफ़ी नहीं होगा, और बुलूगत के बाद अगर उन्हें इस्तिताअत होगी तो दोबारा फर्ज हज करना पड़ेगा। आदमी का अकीका ना हुआ हो, क्या उसका हज कबूल नहीं होगा? इस सिलसिले का यहाँ सवाल किया गया है कि इस साल हमारे वालिद साहब ने हज का इरादा किया है और इसकी कार्रवाई चल रही है। बचपन में उनका अकीका नहीं हुआ था। अब एक मौलवी साहब ने उन्हें बताया है कि जब तक आदमी का अकीका ना हो जाए उसका हज कबूल नहीं होता। बराह करम मुत्तला फरमाएं कि शरअन इसकी क्या हकीकत है। कहते हैं जिस मौलवी ने ये बात बताई है कि हज की सेहत या कबूलियत के लिए इससे कबल उस आदमी का अकीका होना शर्त और ज़रूरी है, उसने बिलाशुबहा गलत मसला बताया है। किताब सुन्नत के नुसूस में कहीं भी इसका तस्करा नहीं है। इस वास्ते अगर आपके वालिद को अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह तक पहुंचने की माली और जिस्मानी इस्तिताअत दी है तो उन पर हज फर्ज है, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उन्हें इस फरीज़ा से सुब्कदोश हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, लोगों में से जिसको बैतुल्लाह तक पहुंचने की इस्तिताअत हो उस पर अल्लाह ने हज बैतुल्लाह फर्ज किया है। इसलिए आप अपने वालिद साहब को हज के लिए भेजें और मज़कूरा मौलवी साहब के फतवे पर ध्यान न दें। औरत का तन्हा सफ़र, मियाँ बीवी हज करने के लिए गए, शौहर का मदीना में इंतकाल हो गया, तो क्या औरत तन्हा सफ़र कर सकती है, सफ़र हज कर सकती है, जबकि वहाँ उसका कोई भी महरम नहीं है? और उसके हज का क्या हुक्म है? कहते हैं ऐसी सूरत में औरत अपने काफिला वालों के साथ हज करेगी और हज के बाद उन्हीं के साथ वापस अपने मुल्क आएगी। यहाँ एयरपोर्ट पर उसके अहले खाना उसको ले लेंगे, क्योंकि ऐसी सूरत में उसके लिए मजबूरी है और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, बस जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो, पर अमल करते हुए जहाँ तक हो सके अल्लाह से डरे और ज़ेबो ज़ीनत वगैरह से परहेज़ करे और गैर महरम मर्दों के साथ इख्तिलात से बचे, और हज छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इस वास्ते हज भी करेगी। बगैर महरम के औरत हज का सफ़र नहीं कर सकती। यहाँ सवाल करता है साइल कि हदीस ला तुसाफिरन इम्रअतुन इल्ला व मअहा महरम, ये सही बुखारी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 143। तो कहते हैं कि इस हदीस के पेश नज़र क्या कोई औरत बगैर महरम के हज का सफ़र कर सकती है, जबकि उसका महरम एयरपोर्ट तक उसे छोड़ने आए और जहां हवाई जहाज से वो उतरेगी वहां भी उसका दूसरा महरम उसका इंतजार कर रहा हो? तो क्या यह हज शरअन जायज है? मालूम रहे कि इस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे लगेंगे। तो कहते हैं कि औरत के बगैर महरम के सफर के अदम जवाज में बाज लोगों ने मुद्दत सफर का लिहाज किया है और बाज ने मसाफत सफर का। अहवत ये है, यानी ज्यादा एहतियात इस बात में है कि मसाफत का लिहाज किया जाए। अगर किसी औरत ने आपके जिक्र करदा तरीके पर हज कर लिया तो उसका हज हो जाएगा, क्योंकि
जब पूरा सफर हज बगैर महरम के करने की सूरत में हज हो जाता है तो इस सूरत में बदर्जे औला हो जाएगा। अलबत्ता मज़कूरा वाला हदीस की मुखालफत की वजह से उसे अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। औरत किसी औरत की महरम नहीं बन सकती। क्या माँ बेटी साथ में हज कर सकती हैं जबकि उनके साथ कोई मर्द महरम नहीं है? वो कहते हैं कोई औरत किसी औरत की महरम नहीं होती है, इस वास्ते कि अगर उनके पास कोई मर्द महरम नहीं है तो उन पर हज फर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर हज कर लिया है तो फरीज़े हज उनसे साकित हो गया और इन पर दोबारा हज करना वाजिब नहीं होगा। अलबत्ता बगैर महरम के सफर हज की जो गलती की है, अल्लाह से इस पर उन्हें तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।